Hello everybody, this is Tarot Chini. Namaste, welcome to the channel and this reading is going to be on Elvish का birthday reading जो कि हम करते हैं आने वाले 12 महीनों के लिए the coming 12 months. Birthday is like a portal, it's your own personal portal जहाँ से आपने काफ़ी पड़ाव पार कर लिया है. स्पेसिफिकली आपने लास्ट 365 डेज में एक पड़ाव पार कर लिया है एंड इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट chapter of your life, next phase of your life. तो ये next phase, how this is going to be for you, what are the opportunities that will come for you, what are the challenges that you will come for you, so that you can wrestle with your challenges and you can help your soul grow so that you have a very enriching experience on this Mother Earth, which provides duality so that we can learn our lessons and grow in spirituality, help our soul basically grow. So with this intention कि पोर्टल है, आने वाला एक साल अब कैसा होने वाला है, चलिए हम देखते हैं. These are the cards that I'm gonna be using and so first of all let's see कि what is the gateway opening for Elvish, for all his fans. Let's see. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Elvish, for his birthday, for the coming 12 months. What is the gateway opening for him? Yes, we have the card. Emerging into grace. All right. I open my soul to grace. I open my soul to grace. ये कार्ड one of the celebrity reads में आया है. I'm not sure if it was Elvish or it was somebody else. If I'm not wrong, it was Elvish only. But I cannot be sure. मुझे याद नहीं है. I open my soul to grace. How interesting that I started the reading with this little insight into it. और यहाँ पे soul के grace की ही बात हो रही है. Emerging into grace. It's like emerging into grace. Maybe a period of healing. Yeah, it's going to be healing the past for him. तो आने वाला एक साल with all the things that happened this year, it's going to be all about healing the past. देखो past में अगर healing the past है इसका मतलब definitely है there have been challenges, it has not been easy. I step into my future with strength and clarity. ये वाला कार्ड बैक ऑफ द डेक में था. अभी क्या करना है, ये एनर्जी है emerging into grace. I open my soul to grace. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि जब हमारी लाइफ में challenges आते हैं तो definitely हमारा जो दिल है it basically it becomes small because we are having challenges, we don't see the light. हमें लाइट नहीं दिख रहा है तो फिर हमें होप भी नहीं दिखेगा, हम सब तरफ डार्कनेस देखेंगे और डार्कनेस में तो क्या बोलते हैं ना कि अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो फिर क्या दोस्त क्या ही कोई. तो इस तरह की एक हैवी एनर्जी से क्वाइट पॉसिबली वो गया है एंड दिस time onwards, with this portal onwards, it's going to be all about healing the past challenges and trying to see it in a different way. कि ये challenge आया तो क्या चीज़ basically हमें सिखाने के लिए आया था, क्या वो हमें ये सिखाने के लिए आया था कि get grounded and just maybe open your eyes and see कि जब difficulties आती है तो क्या वो लोग हमारे साथ रहते हैं, जब हमारा अच्छा समय था तब वो लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, क्या चेंजेस आता है लाइफ में, क्या चेंजेस आता है रिलेशनशिप में, आसपास के लोग कैसे चेंज होते हैं. तो ये सारी चीज़ों के तरफ हमारी आंखें खोलने के लिए एक नया एक्सपीरियंस को तुम देखो. जब ज़िंदगी बदलती है, समय बदलता है तो लोग कैसे बदलते हैं और हर चीज़ कैसे बदलती है, वो एक्सपीरियंस से हमें डेफिनेटली दुख पहुंचता है, डिसअपॉइंटमेंट पहुंचता है, बट वो भी एक एक्सपीरियंस है जो कि हमको सिखाने के लिए आता है. तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग द पेन एंड मेकिंग योर हार्ट वेरी स्मॉल, ट्राई टू सी कि लाइफ ने ये एक्सपीरियंस क्यों लाया, ताकि हम चीज़ों से
अब जब हम हर तरह की एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमारा मोह भी भंग होता है, हम ग्राउंडेड भी हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि जो महामाया चीज़ें लाती है और उसके साथ जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिर कैसे वो समय के साथ बदलता है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब चीज़ जब हमको पता चलता है तो बेसिकली आवर सोल जो हमारा ईगो है, जो कि हमेशा अटैच रहता है बहुत सारी चीज़ों से, वो थोड़ा लिबरेट हो जाता है, थोड़ा सा अपनी होल्ड हमारे डिज़ायर्स पे, हमारे कंपल्शंस पे, हमारे कॉम्पिटिटिवनेस पे लूज़ होता है, हमारे ईगो का होल्ड। और जब ईगो का होल्ड हमारे पे लूज़ होता है तो हम थोड़ा सोल को एक्सपैंड करने का मौका देते हैं कि हाँ, दुनिया और भी है, इसके बियॉन्ड भी दुनिया है ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट हीलिंग द पास्ट एंड देन ऑफ कोर्स हीलिंग मूविंग इनटू द फ्यूचर। और ये वही सारी चीज़ें हैं, द एक्सपीरियंस। सो फ्रॉम हियर दिस इज गोइंग टू बी दिस सिटिंग विथ योर पेन एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ कोर्स हीलिंग इट, लर्निंग द लेसन्स। ग्राउंडिंग की बात भी की थी मैंने। तो बेसिकली वही है कि हम ग्राउंड हो जाते हैं। And when you are grounded, the winds will not break you. Winds of change. जब समय बदलता है, आप ग्राउंडेड हैं तो आप नहीं टूटते हैं। एनीवेज, आने वाले 1 साल में किस तरह की जर्नी होने वाली है उसकी लेट्स सी। Can we please have the answers, dear angels? आने वाले 1 साल में what are the various stages that he will go through? Thank you so very much. In the flow, everything is smooth sailing. All right. See. All right. See, the whole theme about his new year is going to be about emerging into grace, becoming humble, sitting with your pain, sitting with the pain, feeling it, understanding the higher purpose of all this, and then finally healing the past. जब आप ये सब सारी चीज़ें करेंगे, you will sit with your pain, you will sit with your different experiences which were very uncomfortable. Some of the experiences were maybe unexpected, some of the experiences was very disheartening, some was very disappointing, and you saw a completely different thing, you were exposed to completely different thing. तो उसके साथ जब आप बैठिएगा, you will sit with it, you will acknowledge it, you will allow the experience to heal, and इससे आपका past heal होगा, and then of course you are ready to move on to the future. और यहाँ पे है ये, everything is smooth sailing. Take action with passion. Okay. Surrendering to the journey, release control. And then finally, joy and delight in the last 3 quarters of his year. तो ये मोटा जर्नी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं coming for him. Okay, this is what the whole year is going to be about. फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट 3 months from now onwards, September, October, November, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं for things to get into flow. ठीक है, चीज़ें अलाइन होना स्टार्ट होंगी, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। तो सब चीज़ तितर बितर थी, चीज़ें धीरे धीरे अलाइन होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट 3 months में आप। उसके बाद ही विल स्टार्ट, क्योंकि अब चीज़ें अलाइन हो गई हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हीलिंग भी हो गई है, तो अब क्या है, ही विल टेक मोर पैशनेट एक्शन लेगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, जब एक्शंस लेंगे तो फिर क्या होता है, फिर से हमारा ईगो थोड़ा सा हावी हो जाता है, हम चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं ना, क्योंकि अब तो हमारे पास चीज़ें बहुत दिन से अलाइंड हैं, हमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, हमारा एक्शंस भी लिया है हमने, अब हमें थोड़ी सी आदत हो गई है कि जो हम चाहेंगे वैसे ही होगा। तब वहाँ पे क्या होगा, अगर चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर होंगी तो हम थोड़ा सा हो सकता है कि रेस्टलेस हो जाएं और चीज़ों को एकदम कंट्रोल करने की कोशिश करें। दिस इज अराउंड 3 months, so this is going to be like 7, 8, 9 months.
तो यहाँ पे ऑफ कोर्स उसे रिलीज करना पड़ेगा कंट्रोल। तो कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पे ऐसी बनेंगी जहाँ पे वो चाहेगा चीज़ों को कंट्रोल करना, और उसका गाइडेंस डेफिनेटली है कि इंजॉय द जर्नी इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल इट, बिकॉज लर्निंग्स यहाँ पे ही हैं, एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ही हैं आपके सोल की ग्रोथ के लिए। एंड देन फाइनली द लास्ट 3 मंथ्स जो होंगे उसके जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय, जो कि यहाँ पे स्टेपिंग टू द फ्यूचर भी कर रहा है। तो अब देखो कि बहुत ही ब्यूटीफुली ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं आगे की तरफ, और हो सकता है कि इस जर्नी में वो अपने अंदर की लीडरशिप को, all this journey is designed basically to bring out the leader in him, to become the wise leader who I think उसकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो जब वाइज लीडर होते हो, जब आप अपने आप जितने अच्छे लीडर हैं, आप जितने अच्छे एट अ पर्सनल लेवल हैं, एंड इफ़ यू आर अ लीडर देन इफ़ यू हैव अ बिग फॉलोइंग देन यू कैन ऐड वैल्यू टू अदर्स ऑल्सो, है ना। तो दिस जर्नी इज़ ऑल डिजाइंड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट लीडर इन हिम एंड ऑल दैट। तो दिस इज़ वॉट इट इज़ गाइज, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना ब्रेक डाउन द tarot cards.